Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will learn events in React. So what is event? Events are signals that something has occurred, like user input or user actions, like user click on any element, user type something. These actions are called events. And key down, key press, so this action are called events. And how to handle events. So first we learn in this video is handling click events in React. So there is a button which is click me, and at first we run our React and using npm run dev. So here we can see our basic React app. There are many components, and we just go into app component and remove other component which are not used in this video. So comment this, and let's see our UI. So this is our button which is click me. When user click on this button, the event is called click events. When user click on button, when an element is clicked, like this is our h1 element, this is our h1 element app component, and here user click on this element is called on click. So when user click on this button, this event is also called on click. So in this video we learn how to handle on click event, how to handle click events. So there is button, and we write something like on click event. It means when a user click on this button where text is click me. So there is an event handler, and we write some function which is do something do something. And here in button component we create a function. Let do something do something, and this is only console dot log which button was clicked. So when user click on this button, then on click event occur, and this event have a this event have an event handler, and event in this event handler there is an function which print something text in console. So we just open our console, and here is our console, and here is our UI. So just wait. If So when user click on this button, so the event trigger, and the event trigger which is on click event, which is handled by on click event handler. So on click event handler we pass a function which print button was clicked. So if we perform some calculation or other logic, so we can do this way. And there are many click events, and
we create another element which is input element, and here we pass on change, and on change takes a callback which print console.log, console.log, console.log on change event trigger. Now when we click on this input element and type anything, our on change event handler trigger and do some action like print on change event trigger. And if we click on this button, uh, on click event handler perform this function which print button was clicked. So in this video we learn how to handle click events, and handling non-click events, which is on mouse over, key press, on double click, key down. Like in this button there are handling non-click events, which is key press, key down, on key down, and on mouse down. So there are many non-click events which handle through this way. So remove this, and we can access the event object in handler. So this is our event handler, and we can access event object in handler जब भी कोई इवेंट अकर करता है, लाइक किसी यूजर ने किसी बटन पे क्लिक किया तो ये एक इवेंट अकर हुआ, तो उसके साथ एक इवेंट ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड होता है जो हमेशा हमारे इवेंट हैंडलर को ऑटोमेटिक पास होता है। जो ये हमारा इवेंट हैंडलर है इसको ऑटोमेटिक एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये जो हमारा इवेंट हैंडलर है, ठीक है, इसमें हमारा एक इवेंट पास होगा। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे console.log e। तो ये हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट है जो कि जब भी यूजर जो है लाइक कोई इवेंट अगर करता है, कोई एक्शन करता है, यूजर ने इनपुट किया, क्लिक किया, ऑन क्लिक करने पे, की प्रेस करने पे, तो ये सारे यूजर के जब एक्शन होते हैं तो इवेंट अगर करता है तो उसके साथ साथ हमने एक एसोसिएटेड इवेंट हैंडलर बनाया है। तो इसके साथ इस इवेंट के हैंडलर के साथ ऑटोमेटिक वो इवेंट ऑब्जेक्ट पास होता है। तो इवेंट का एट्रीब्यूट है टारगेट, जिस और इवेंट हमने प्रिंट कराया है, तो देखिए वैल्यू क्या आती है, ये है हमारा। जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट आ गया, और इस इवेंट ऑब्जेक्ट में ऑन क्लिक एंड यहाँ पर एक हमारे पास टारगेट होगा। टारगेट से हमें ये पता चलता है कि कौन से बटन को कौन से एलिमेंट को क्लिक करने पर ये इवेंट अगर हो रहा है। तो इवेंट डॉट टारगेट करने पे हमें पता चलेगा यहाँ पर। अब हम इवेंट डॉट टारगेट प्रिंट कर देंगे console.log इवेंट e डॉट टारगेट, और यहाँ इस फंक्शन जो इवेंट हैंडलर है इसको ऑटोमेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट पास होता है, तो यहाँ पर हम ई डॉट टारगेट पास करेंगे, और यहाँ पर भी हम ई डॉट टारगेट पास करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है इवेंट अकर कर रहा है। तो ये हमारा यूआई हुआ। इसको हम लोग जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा इवेंट जो है बटन वाला इवेंट, ऑन क्लिक वाला इवेंट अकर हुआ, उसमें हमने पास किया था
एक इवेंट हैंडलर, और उसको हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया ई डॉट टारगेट प्रिंट कराने से हमारा ये बटन एलिमेंट प्रिंट हो गया कि इस बटन एलिमेंट से इस बटन एलिमेंट पे इवेंट ट्रिगर हो रहा है। और ये जो फंक्शन था जो कि हमारा इवेंट ट्रिगर होने के बाद ये फंक्शन जो है हैंडल कर रहा है, जो भी इवेंट है उसको हैंडल कर रहा है। और इनपुट टाइप में हमारा एक इवेंट है, इवेंट, इसको हम लोग इवेंट डॉट टारगेट कर देंगे, इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट। तो जब भी कोई भी इवेंट अकर होता है तो जो इवेंट हैंडलर होता है उसको ऑटोमेटिक एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास होता है। तो यहाँ पर जब यूजर ने इनपुट एलिमेंट में कुछ टाइप किया, यानी कि जब भी ऑन चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ ऑन क्लिक नहीं किया है, ऑन चेंज किया है, यानी कि कुछ भी उस इनपुट एलिमेंट में कुछ भी एक एक कैरेक्टर लिखेंगे तो वो ऑन चेंज होता रहेगा। तो जब भी वो ऑन चेंज होगा हमारा ये इवेंट हैंडलर ट्रिगर होगा और ये इवेंट ऑब्जेक्ट पास होगा, जिससे इवेंट डॉट टारगेट से हम पता कर सकते हैं, टारगेट इवेंट का एट्रीब्यूट है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इवेंट ट्रिगर कर रहा है। और यहाँ पर हम फिर से चेक करते हैं, अगर हम इस इनपुट एलिमेंट में कुछ भी करें, टाइप करें या बैक स्पेस क्लिक करें, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है कि ये इनपुट टाइप जो है इवेंट ट्रिगर कर रहा था और ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर हमने कंसोल कराया था। ठीक है। एक इवेंट जो ऑब्जेक्ट होता है ये एसोसिएटेड, इसका एक क्या बोलेंगे, इसके साथ एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। इसका ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो इनपुट एलिमेंट होता है, और एक अगर हम कोई फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करके देखें, तो इस div में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। लेट्स क्रिएट अ फॉर्म इन दिस div and first our is input element and placeholder, enter your name, and there is a button which is submit button, submit, and on click on submit, we pass on submit या ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट करते हैं। ऑन सबमिट हम एक फंक्शन पास करेंगे जो कि इस इवेंट को हैंडल करेगा, हैंडल सबमिट। अब हम अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन हैंडल सबमिट। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन एक इवेंट ऑब्जेक्ट को लेगा और सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ई को, और एक बार हम अपने यूआई को देखेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर लाइक नेम किया, और नेम करने के बाद एक सेकेंड, इस div को हम कुछ स्टाइलिंग दिए थे जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। यहाँ पर सेम स्टाइलिंग हम कॉपी कर देंगे इस div के लिए, कॉपी एंड पुट दिस सेंटर, एंड अब हम अपना यूआई चेक करेंगे। तो यूआई में क्या दिक्कत आ रही है, ये एक हमारा div है और ये div के अंदर हमने ये दिया है लास्ट, मार्जिन टॉप दे देते हैं हम सीधे, मार्जिन टॉप 50 px, एंड इसको सेव करते हैं। तो ये अब हमारा इनपुट एलिमेंट दिख रहा है। जैसे ही इस इनपुट एलिमेंट में हमने कोई भी वैल्यू पास की, लाइक नेम कोई पास किया, और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, जैसे ही सबमिट हुआ तो इस इनपुट में जो भी लिखा था
वो डिलीट हो गया, मतलब रिमूव हो गया। तो ये जो है इस जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, और इस इवेंट ऑब्जेक्ट के डिफॉल्ट बिहेवियर को हमें प्रिवेंट करना होता है रिएक्ट में, ताकि हम अपना कस्टम जो भी हमें लाइक उस इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। लाइक हम यूज स्टेट का यूज करते हैं ताकि हम जो इनपुट एलिमेंट में वैल्यू है उसको रिमूव कर सके, तो वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जब फॉर्म सबमिट हो तो हम उसके जो प्रिवेंट डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोक दें। अभी तक था कि फॉर्म जैसे ही सबमिट हुआ तो इनपुट एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा था वो रिमूव हो गया है, लेकिन जैसे ही हम इस इवेंट मतलब ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को कॉल करेंगे तब देखते हैं क्या सेम चीज हो रही है या कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो जैसे ही हमने लाइक कोई भी नेम लिखा, सबमिट किया, तो अभी भी हमारे स्टिल ये वैल्यू है, ये रिमूव नहीं हुई है, यानी कि उस इवेंट ऑब्जेक्ट के डिफॉल्ट बिहेवियर को हमने प्रिवेंट कर दिया है, रोक दिया है। तो ये था कि कैसे हम अपने जितने भी इवेंट्स हैं रिएक्ट में उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो दो तरीके के हमने इवेंट हैंडल किए। ऑन क्लिक को एक अलग से फंक्शन बना के हमने देखा, फिर हमने एक ऑन चेंज इवेंट देखा कि जब भी एलिमेंट जब भी इनपुट एलिमेंट में कोई भी चेंज होगा, लाइक ए बी सी हम टाइप कर रहे हैं तो हर बार चेंज होगा, और हर बार चेंज होगा तो ये इवेंट हैंडल ट्रिगर होगा। इवेंट डॉट टारगेट से हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट इवेंट को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, बाकी जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो था कि फॉर्म सबमिट होगा तो जितने भी इनपुट एलिमेंट में टैक्स होंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे, उसको हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड को कॉल करके रोक दिया है। ओके।